हो जाना चाहिए आज। इतने सारे विंडोज बंद कर दिए। हेलो, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Oh, thank Good God I am afternoon, in. ma'am. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. So I think we'll wind up for this unit today. I'm trying to share my screen. I hope you are able to see. Are you able to see? No, ma'am. No, ma'am. No, वही ma'am. पुराना तकलीफ। आज तो होना चाहिए। दिख जाता तो अच्छा होता। Just wait for 2 seconds. I think it will be seen. And till it is working, let's start the class because I have few things to tell you. Safir not responding. आज ही हो रहा है। Okay, so last class we were seeing that what is the need for having an interdisciplinary perspective of teaching social science. We have seen it in the two perspectives. One, social science as a discipline. So therein we have not had much points to discuss because I felt that you are going to be would-be teachers, so better to make you understand understanding social science as a subject in the school. Okay, so when we were talking about having interdisciplinary perspective in social science, I said that usually social scientists, what they do is they only look at how to solve the social issues. But if they are having an interdisciplinary perspective, then they should also see that what help they can seek from other disciplines. Like we were having the example of having potable drinking water in a place where it was not available, and how to solve the problem. So if a person just had an normal disciplinary perspective, then the social scientist would just look at it as a social problem that people are not getting drinking water, hence they are suffering. And what they will do is they will just some other nearby places. But if that social scientist is keen to find out that what are the actual reasons why the digging of the well in a particular place doesn't give potable drinking water, what he will do is he will call a chemistry person, he will call an environmental scientist, he will call someone from physics, he will call someone from mathematics, and then all of them together will sit down and find out that how to bring potable water in the village from the resources which are available in the village. Okay, so this is the perspective which an interdisciplinary way
मैडम क्या आवाज आ रही है किसी को? हेलो मैम। मैडम नहीं आ रही है मैम। मैम है लैपटॉप पे मीटिंग में? अपने आप मैडम है मीटिंग, कहाँ गई? मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा। मेरा लेकिन वॉइस तो मतलब माइक तो ऑन ही है। हाउ अबाउट इट नाउ? यस अब मैम, सुन रहा? अभी आ रहा है आवाज। हाँ मैम। हाँ ठीक है, मैंने फोन से कनेक्ट कर लिया है क्योंकि पहले लैपटॉप और फोन दोनों पे था तो इको हो रहा था, तो फिर मैंने फोन बंद कर दिया था। अभी लैपटॉप में अपने आप चला गया है, इसीलिए मैंने फोन ऑन कर दिया है। ठीक है, तो जब तक उसमें आ नहीं जा रहा तब तक हम लोग इसमें से पढ़ लेते हैं। So that was about having an interdisciplinary perspective for social science as a discipline when we pursue some research work. Okay. Now coming on to the finding interdisciplinary perspective for social science as a subject in schools. Okay. So here we of course so अभी interdisciplinary perspective है मतलब हर टॉपिक को हर अलग अलग डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से समझना है, वही है उसका मतलब। ठीक है, तो first we will see why there is a need, because your topic in the syllabus shows that why there is a need of having interdisciplinary perspective in social sciences, in studying social sciences. Okay, so why there is a need? Because one thing is that social problems are diverse in our country. We have lot of social problems which are diverse in nature. ठीक है, उसका कोई डाइवर्स इन नेचर मतलब उसका कोई एक रूट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर पावर्टी एक सोशल प्रॉब्लम है तो एक रूट नहीं मिलेगा, उसके बहुत सारे रूट्स मिलेंगे। ये इस वजह से पावर्टी है, इस वजह से पावर्टी है, बहुत सारे आपको उसके रीजंस मिलेंगे। ठीक है, देन सेकंड थिंग इज देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी of the social structure. Our social structure, I told you that our social structure is very complex. Okay, why? Because it has been changing over the years, and I gave you example of family as an institution or as a social structure. फैमिली पहले जॉइंट था और अभी न्यूक्लियर हो गया, अब तो और भी सिंगल पेरेंट वाले फैमिलीज भी हो गए। ठीक है, सो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस। सो एज इयर्स आर ग्रोइंग एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में अभी वी डोंट हैव फैमिलीज विद जॉइंट इन नेचर। जॉइंट फैमिलीज भी है, जॉइंट फैमिलीज कम है लेकिन है। फिर न्यूक्लियर फैमिलीज भी है, सिंगल पेरेंट वाली फैमिलीज भी है। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे सोशल इश्यूज अराइज होते हैं, और इसकी वजह से वी रिक्वायर टू हैव interdisciplinary perspective and interdisciplinary perspective in social sciences as a research field or as a discipline and also as a subject. ठीक है, इफ यू नो अर्लियर वी जो टेक्स्ट बुक होते थे स्कूल्स के, उसमें लिखते थे सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज वाज द सब्जेक्ट। नाउ वी राइट सोशल साइंस। ओके, क्यों? क्योंकि साइंस वर्ड गिव्स दैट देयर इज अ साइंस का मतलब क्या है कि स्टेप वाइज फॉर्म में हम किसी चीज को समझते हैं और उसको बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वी गिव रैशनलाइजेशन एंड लॉजिक टू थिंग्स दैट वी आर लर्निंग। Okay, that's why we have changed it from social studies to social science. Okay, तो इस सोशल साइंस इन इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि हम लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ क्या बोलते हैं सोशल साइंस डिसिप्लिन के जो अलग अलग एरियाज हैं, क्या बोलते हैं रिसर्च एरियाज है, वहीं पे हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करें और ऐसे चलाएं। नो, we also want that the students in the school should also learn it in an interdisciplinary perspective. So today we will see how that can be done, okay, in the school. So now going on to the next points, that introducing social science as a with an interdisciplinary perspective in the schools also. देखो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, जो करिकुलम फ्रेमवर्क होता है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दो है हमारे पास अभी फिलहाल। एक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000, जिसको हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप उसमें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव है उसके बारे में उन्होंने बहुत बातें की है। ठीक है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहां पे शायद आपको इतना उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम बीएड में आपको बता रहे हैं
you have to teach in interdisciplinary perspective, so that you make students who are better critical thinkers, creative thinkers, and who can make better decisions and bring out solution for lot of social problems. Okay, so तो हमारा काम क्या है कि वो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको बताएं। तो अभी हम लोग हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके थ्रू आपको वही बता रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जो अपने कुछ पॉइंट्स लिए हैं स्टार्टिंग में इस यूनिट के, वो भी मैंने एनसीएफ से लिए हैं, एनसीएफ 2000 एंड एनसीएफ 2005। तो मैं आपको उसके पेज नंबर्स भी बताऊंगी, ठीक है, सो दैट यू कैन रीड दैट, बिकॉज मेरे जो स्लाइड्स हैं उसमें सिर्फ पॉइंट्स हैं। इफ यू वांट टू रीड पूरे सेंटेंसेस में, क्या बोलते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में, और अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो यू कैन रीड दोज पेजेस। ओके, सो we have to now see use of interdisciplinary, we have to see in terms of school subject. Okay, so using an interdisciplinary perspective allows us to have more of questioning, ठीक है। हम लोग को अगर interdisciplinary perspective से पढ़ाना है तो we should have more of questioning. Okay, अब questioning should not only be limited to any one field, मतलब आप history का topic पढ़ा रहे तो सिर्फ history related questions नहीं, उसके अंदर भी अगर आपको कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड मिल रहा है, कुछ एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड मिल रहा है, तो उसके क्वेश्चंस भी आप रेज करो, ठीक है। सो देयर शुड बी अ क्वेश्चन। देन अकोमोडेट स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी। अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हो ना, तो क्या होता है कि स्टूडेंट का डाइवर्सिटी को हम एड्रेस करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे क्लास में जो हर एक बच्चा है वो अलग अलग कल्चर से आया है, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, अलग अलग स्टेट से आया है, तो हर एक का स्टेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा। तो व्हेन यू आर यूजिंग फॉर टीचिंग वन टॉपिक सम इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, अगर आपके 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, उसमें से शायद 10 ही इंटरेस्टेड होंगे अगर आप नॉर्मल टीचिंग कराओगे, लेकिन अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से पढ़ाओगे तो देयर विल बी मोर देन 20 और 25 स्टूडेंट्स, ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एरिया आप बोलोगे। समझ रहे हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर, ठीक है, अगर हम लोग किसी बफे में जाते हैं और किसी ऐसे ही कोई भी फंक्शन में जाते हैं जहाँ पे खाना पिरसा जा रहा है, तो हमें कौन सा अच्छा लगेगा? हम लोग को बफे अच्छा लगेगा ना, क्योंकि वहां पे हमको जो चाहिए वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से किसी टॉपिक को पढ़ाते हो तो हर बच्चा अपने रिलेटेड जो इंटरेस्ट की चीजें हैं वो उसमें से समझ जाता है, एंड हेंस आपका जो टॉपिक पढ़ाने का जो एम है वो अच्छे से फुलफिल होता है। These are all needs why we should use interdisciplinary perspective in school. Okay, so first is because we want to ask them, teach them through questioning. Second, because it accommodates students diversity. Third, it emphasizes mastery of learning processes. ठीक है, मास्टरी ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस का क्या मतलब है? देखो, कोई चीज हम पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे उसमें मास्टर हो जाते हैं, ठीक है, कि वो लोग ने उसको उसमें वो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, नहीं। लेकिन जब आप उन लोगों को ये क्वेश्चनिंग पूछ के या अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करते हो, तो वो लोग उसको होलिस्टिकली समझते हैं, और जब होलिस्टिकली समझते हैं तो वही हमारा एम होता है एज अ टीचर, कि हम किसी भी टॉपिक को उनको होलिस्टिकली समझाएं, अलग अलग व्यू पॉइंट से उनको समझाएं, ठीक है। हेंस another need that is fulfilled is that interdisciplinary perspective emphasizes mastery of learning processes. Okay, then another thing is that whatever learning theories we have, that also emphasizes on using interdisciplinary approach, and that's why also there is a need of using interdisciplinary approach. ठीक है, आप ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत सारे लर्निंग थियोरीज पढ़ रहे होंगे अभी, ठीक है, तो उसमें भी ये उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव के बारे में या अप्रोच के बारे में बोला होगा, दबे शब्दों में बोला होगा, डायरेक्टली नहीं बोला होगा इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। उन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऐसे वर्ड्स यूज किए होंगे, ठीक है, लेकिन बेसिकली दैट मीन्स दिस ओनली, कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। अब ये होलिस्टिक डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि आपके क्लास में जो हिस्ट्री के चैप्टर में सिर्फ 10 बच्चे इंटरेस्टेड होने वाले थे, आप अगर उन लोगों को हिस्ट्री के टॉपिक के अंदर ही कुछ सिविक्स वाला भी रिलेट कर रहे हैं, कुछ ज्योग्राफी भी रिलेट कर रहे हैं, कहीं कुछ साइंस वाला भी रिलेट कर रहे हैं, तो जो बच्चे आपके 50 बच्चों में से
जो भी बैठे हैं जिनको साइंस में इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा ज्यादा सुनने लगेंगे, जिनको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा ज्यादा सुनने लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका वो जो टॉपिक पढ़ाने का जो एम है वो तो फुलफिल हुआ कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा कि नहीं? So that is Yes, how we ma'am. bring holistic development. Got it? Then next is young minds. There is another need is that young minds should not learn topics in an isolated format. ठीक है, जो लर्निंग थियोरीज है वो लोग हमेशा बोलते हैं कि कोई भी टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है दैट शुड नॉट बी टॉट इन आइसोलेटेड फॉर्मेट। ठीक है, आइसोलेटेड फॉर्मेट में नहीं पढ़ाना है, इसका मतलब है कि रिलेट करके पढ़ाना है। तो रिलेट हमेशा सेम सब्जेक्ट से थोड़ी करेंगे, उस हर टॉपिक का रिलेशन किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। ठीक है, हेंस देयर इज अ नीड दैट वी शुड यूज इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव इन टीचिंग सोशल साइंस। नेक्स्ट इज दैट help young students to note relationship between the previous knowledge. When you are using interdisciplinary perspective of teaching, then you are actually helping them to relate the things that they have already learned. ठीक है, तो आपके जो लर्निंग थियोरीज आपने ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ा है उसमें कहीं पर ऐसी बात हुई है कि you should relate the topic with what previously learned knowledge and then you should teach? ऐसी बात हुई है कहीं पे? किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा बोला है या आपने पढ़ना बाकी है? और जी जब आपने पढ़ाया था तब बोला था कि यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज 4 टोटल थे। यस, तो आप जब प्रीवियस नॉलेज किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूज करोगे तो हो सकता है कि वो प्रीवियस नॉलेज आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी यूज कर रहे हो। जरूरी थोड़ी है कि आप उसी सब्जेक्ट का प्रीवियस नॉलेज यूज करोगे। ठीक है, तो देन यू आर एक्चुअली, so there is a need of interdisciplinary perspective. Okay, then there is another need is that it provides opportunities to the students. क्या opportunities provide करता है? क्योंकि जब हमें इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव में पढ़ाना होता है तो हम सिर्फ लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते कि स्टूडेंट्स बैठ गए और हमारे भाषणबाजी सुन रहे हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं पढ़ा सकते, हम लोग को उनको ग्रुप वर्क देना पड़ेगा, हम लोग को उनको असाइनमेंट देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग से कि वो लोग पूरे इन्वॉल्व हो जाए उस टॉपिक में, राइट? दैट इज व्हाट वी एक्चुअली एम एट. So when we aim that the students are learning in interdisciplinary perspective, then we are also helping them to work in a cooperative manner. वो लोग cooperation से काम करते हैं. ठीक है, then it also offers the students opportunities for developing individual learning abilities. ठीक है, तो individual learning abilities develop करना भी तो हमारा ही काम है ना, तो that also is catered to if you are using interdisciplinary perspective. कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, I have some steps to show you. Then another need is that many of the academic skills are taught. ठीक है, now what are the academic skills? Hello, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, are you sharing your screen? I have not shared yet because my laptop is still showing that we couldn't connect. Okay, ma'am. But I'll be sharing this PPT with you. Don't worry. Okay. Okay, ma'am. Because I understand that this might be the only reading reference or background thing that you cannot be. मुझे लगता है कि मैम इको हो रहा है। Now are you able to see my screen? No, ma'am. क्या बात कर रहे हो, मेरे को दिखा रहा है इधर? No, ma'am. मेरे को पूरा दिखा रहा है, No, रेड लाइन दिखा रहा है पूरा मेरे स्क्रीन पे. When I share the screen, the red line we see. Ma'am, class. अभी Yes, आया, ma'am. ma'am. Now it's अभी दिख visible, रहा। ma'am. Okay, now you are able to see. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay, so Yes, these are ma'am. the needs. I hope this continues. Okay, so these are the needs. Okay, then you also help them understand the use of different multiple resources. Okay, when you are using interdisciplinary perspective of teaching, what you will do, you will give them some
assignment, you'll give them some project, you will give them some group work. So what they will do, they will use different resources. Okay, books ho gaya, they will use some internet resources and all those things. Okay, then now coming on to the next point, I hope you are able to still see the screen. Okay, then Yes, it also helps the students to utilize the information accurately and effectively. Okay, now see, if you are giving them a group work or a project work to do in group, or individual work also you are giving them, and you ask them to present their thoughts in the best possible manner, so they might read about 10 pages, but they will consolidate it or condense it and present it in a more accurate and effective manner. Okay, you can tell them that your point should make sense to me, yeah, it should be shortened, you can read so much, but you have to accommodate it in within 2 pages or within 10 points, like that. So what they do is they gather a lot of information, read it, reread it, and condense it in a form that it becomes more accurate and effective for others to understand. Okay, so these are the things that we want to actually, whether we teach social science, science, maths, English, any subject, but these are the skills that we want in the students, that they should be able to present the information well, they should be able to utilize the different reading resources and learning resources, they should have different academic skills of questioning and discussing and finding out different ways and means to find to address a problem. So these are the things that we want them to learn from the entire school curriculum, चाहे वो लैंग्वेज टीचिंग हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो. These are the basic skills we want to develop in them. So when you are using this interdisciplinary perspective to teach them, you are actually using that. Okay, then I have certain points that you can utilize for making teaching in an interdisciplinary perspective. Okay, as we all know, any teacher who walks into the class cannot go without a planning. Okay, so the very first thing that we should do is pre-instructional planning. Now, pre-instructional planning in an to teach in an interdisciplinary perspective is a little bit different from the normal planning. What is little bit different is, you have to read the text that you have to teach thoroughly. Okay, here the word thoroughly is put because you don't have to read it once, you have to read it twice, thrice, you have to read it multiple times in such a manner that you bring out, you find out the integration of that topic with other disciplines. For example, if you are having a topic with geography, okay, now you have to, when you read it first time, you will just read it as a topic of geography. When you reread it, you might find out something that you can relate it with history, that you can relate it with civics, or you can relate it with pol science, civics and pol science, so same hi, almost same hai, or you can relate it with English, or you can relate it with maths. Okay, so many things are there. For example, you are talking about natural resources in geography, and then you can relate it with biology, you can relate it with something in science. So you have to thoroughly read the text twice, thrice, multiple times, so that you find an integration of it with the other disciplines. Okay, now after doing that, in the pre-instructional planning, what you should do is you should form questions. Okay, you should form questions, and those questions should be related to different disciplines. Okay, it should not be कि suppose natural resources है, तो ये natural resources कितने, कौन से natural resources यहाँ पाए जाते हैं, कौन सी जगहों में ये natural resources मिलते हैं. Suppose iron ore के बारे में geography में पढ़ा रहे हो, तो where are the iron ores found, in which places in India iron ores are there, या फिर asking them कि or thinking that all these things. Okay, or second thing that you should ask, if you are planning in an interdisciplinary perspective, then you should say, okay, these iron ores, why they are mostly found in Orissa only, why they are mostly found in this place only. Okay, so when you are using such kind of questions, अब ये जो why का आंसर है वो आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री में मिलेगा
कि हो सकता है कि वहाँ के जो एंशियंट राजा थे उनके बहुत सारे जो भी मतलब रिसोर्सेस थे या जो वेपन्स थे वो सब वहाँ पे बरी हो गए थे, इसकी वजह से वहाँ पे आयरन ज्यादा पाया जाता है, ऐसा कुछ रीजन आ सकता है. Of course, teaching in interdisciplinary perspective will require a lot of your thinking and energy. But if you do this, then and of course, this is not कि आपने प्लान किया और आपको पढ़ाना है. You can also take integrate students into this. Okay, how you can do? I am telling you in the next slide. Okay. So the second step is introduce the methodology to the students. Okay. Now after reading the text again and again, you have found out कि उस टॉपिक का कनेक्शन बायोलॉजी के साथ भी है और हिस्ट्री के साथ भी है. ठीक है. और फिर अब आपने जो क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं उस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एंगेज द स्टूडेंट्स. ओके, you engage the students, you ask the students that Orissa is having major iron ore. This is just an example. I am not sure whether Orissa is having. I think Jharkhand has much of the ores. Yes, ma'am. Yeah, isn't it? So you can say Jharkhand. that, yeah, if Jharkhand is having much of the iron ores, why it is so? So why it is so might fall in history. So ask the students to find out from there. Ask them to find out from a source that is very reliable. Okay, so what is your pre-planning as a teacher, that you have to find out the resources which the students can use. Okay, जिसके अंदर बहुत अच्छा information दिया गया हो, and then you have to give them that these are the resources that I have found. You also can search for other resources. Resources here I mean books as well as the internet resources. Okay, then encourage insight from a wide range of disciplines. So once you put these questions that you have framed in your pre-instructional practice in front of the students, they are actually going to get an insight of thinking in terms of different disciplines. Okay. Then next is making them engage in clear interdisciplinary investigation. Making them engagements, once you have given them questions and assigned them, okay, group A will find out answer for why only Jharkhand has iron ores. Group B will find out that how it is related to the natural resources that is existing there, or not natural resources, the animals and the forest cover that is existing there. Okay. The third will find out the sociological perspective. You will tell them that how these iron ores are actually helping the people to earn a living in the Jharkhand district. Okay. So if you are going to give them एक question एक group में, see how wonderful that topic will be. Okay. Do you think that this will enrich yourself also as a teacher, and it will help the students also to grow? And Yes, then ma'am. at the end of 1 week or 10 Yes, days, ma'am. tell them to present what they have found, or ask them to submit, rather than asking them to submit a write-up. That can always be done because you have to assess them also, but you can ask them to present what they have found, and they will be so joyous to find out. ठीक है, वो लोग बहुत enjoy करेंगे, especially the secondary class students. ठीक है. Now next is take it to the classroom. Okay, take it to the classroom is here means that whatever the students have found out, you ask them present this, ask them to present. Okay. Now here you can see that there are 2 points. One, I have written present the topic in a conventional manner and present the notions from different disciplines. Okay. Teaching in an interdisciplinary perspective can be done in 2 ways. One is you as a teacher have a planning. You as a teacher find out answer for all the questions that you get from the other disciplines for a topic, and you conduct a class. ठीक है. The second way is the way I told you. Questions arise करो और ग्रुप में बच्चों को दे दो. ठीक है. That is the second manner. तो अगर आप as a teacher इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव में किसी टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करते हो और पढ़ाना चाहते हो, तो फिर आपको ये थर्ड स्टेप यूज करना पड़ेगा. इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले जो कन्वेंशनल मैनर में, मतलब ज्योग्राफी का टॉपिक है तो ज्योग्राफी के फॉर्म में पढ़ा दो, फिर उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हिस्ट्री रिलेटेड या बायोलॉजी रिलेटेड लेकर आए हो वो उनको बता दो. ठीक है. तो दिस यू कैन डू. बट if I was a teacher, I would
help the students to learn in their own way. Okay, now next is practice interdisciplinary thinking. Okay, if you are using the second way, मतलब आपने interdisciplinary perspective से किसी भी टॉपिक के लिए क्वेश्चन अराइज कर दिया और फिर वो क्वेश्चंस आपने बच्चों को ग्रुप में बांट दिया कि आपको इसका आंसर फाइंड आउट करके लाना है, ठीक है, और उनको ओरिएंट भी कर दिया कि अगर वाई झारखंड इज हैविंग मोर ऑफ आयरन ओर है तो बच्चों को ये बोलना है कि वहां पे क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से वहां पे आयरन ओर ज्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप से उनका थिंकिंग को डायरेक्ट कर दो और फिर उनको बोलो अब ढूंढो और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, so give the students a related assignment. If you are using the second way of teaching, that is giving all the questions to the students to find out, then you have to use this step. Practice interdisciplinary thinking, give a related assignment to the students. And here I have given an example, but I don't know how far it I'm not giving you this example. Why? Because I feel मैंने already तुम लोग को वो iron ore वाला example दे दिया है. Actually मैंने इसमें ऐसा लिखा था कि you've asked the students to, if it is an economics class and you ask the students to find out that why there is a gap between the payment that is given in a private and a government institution. You know कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देर इज लॉट ऑफ पे गैप, जो लोगों को मिलता है पेमेंट वो बहुत अलग है, तो व्हाई देर इज अ गैप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आएगी, पॉलिसीज भी आ जाएंगी कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है, प्राइवेट को इनकम पास नहीं करती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, या तो फिर हम लोगों का कोई सोशल स्ट्रक्चर जो रहा है वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड रहा है, तो गवर्नमेंट वाले सारा अपना जो स्ट्रक्चर है वो प्राइवेट वालों को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला मैं अभी नहीं इलैबोरेट करती हूँ। देन कमिंग ऑन टू द फिफ्थ स्टेप, providing feedback. This is very important. See, you have given them a task, okay? So you have to give them feedback. So first is आप लोगों ने उनको ग्रुप वर्क दे दिया, let them present. When they present, you give them feedback. Now, as a teacher, if you have to give feedback, you have to be read well. आपको पढ़कर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से पढ़ाने में मजा बहुत आता है और बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत होता है, बच्चों को बहुत मजा आता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम टू फाइंड आउट वेदर द इंफॉर्मेशन दैट द स्टूडेंट्स हैव ब्रॉट इज प्रॉपर और नॉट, फॉर दैट यू हैव टू बी वेल रेड। तो कहीं से भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो, students look at you as a leader of the class, so you have to be well read from good resources which are reliable resources, ठीक है, authentic resources से आपको पढ़कर आना है, ठीक है। so that when the students are presenting themselves, group 1 बोल रहा है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रहा है कि झारखंड में आयरन ओर्स क्यों ज्यादा है, दूसरा ग्रुप 3 प्रेजेंट कर रहा है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के अर्निंग ऑफ लिविंग कैसे होता है वहां के लोगों का थ्रू द आयरन ओर्स। अगर ये सारी चीजें बच्चे बता रहे हैं तो अगर आपको भी कुछ एड ऑन करना है देन यू हैव टू बी वेल रेड, ओके। एंड देन यू हैव टू गिव फीडबैक। व्हाट इज द फीडबैक? यू हैव टू टेल कि अच्छा है बुरा है, जजमेंट नहीं देना है, नेवर बी अ जज टू एनीवन, ओके। This as a teacher you have to learn. You cannot be a judge for anything. You have to tell what is good, ठीक है, rather than telling कि ये अच्छा है ये बुरा है, उससे अच्छा ये वाली जो points है this is good in your presentation. I think the other points, the other 3 points require some modification. और फिर आप अपना perspective रखो, ठीक है। आप अभी स्टूडेंट हो मेरे लिए, ठीक है। अगर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो और मैं आपको बोलूं कि ये तो आपने गलत कर दिया है, तो गलत बात है, आपने गलत बात बोल दी, हाउ विल यू फील? हाउ विल यू फील? डीमोटिवेटेड। हेतल इज सेइंग डीमोटिवेटेड। हाउ विल यू फील? नो आंसर। यस मैम, लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर ये बताऊं आपको कि आपने जो 5 पॉइंट प्रेजेंट किए ना उसमें से 3 पॉइंट जो थे वो काफी रिलेटेड थे टॉपिक से, लेकिन 2 पॉइंट्स में थोड़ा मॉडिफाई करने जैसा है, उसको इस तरीके से मॉडिफाई करो, ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा? मैम तो अच्छा लगेगा, सोचेंगे भी कि आपको मन होगा मॉडिफाई करने का? आपको मन होगा मॉडिफाई करने का? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, because here you have to understand, here you are giving two things, modification तो दे रहे हो as a feedback, लेकिन आपने उनको मोटिवेट भी कर दिया कि भाई आपके जो पहले 3 पॉइंट्स है ना वो तो एक्यूरेट है, इट इज रेलेवेंट टू द टॉपिक, लेकिन जो दूसरे दो है इट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, और मॉडिफाई कैसे करना है वो भी आपने बताया है. ओके, सो बीइंग इन बीएड फॉर 2 years, this is what you are learning. Okay, this is what is the difference between a trained teacher and an untrained teacher. If you take it in a positive sense and you bring that change in your personality, you would groom yourself as a good teacher. Okay, otherwise you would be a normal teacher जो किसी भी चीज के लिए बच्चों को जज कर देता है और उसको ब्लेम कर देता है कि भाई ये तो तूने गलत कर दिया, गलत बात है, ऐसे थोड़ी करते हैं, उसको देख के सीखो, इसको देख के सीखो. ठीक है, सो यू कैन नॉट डू दिस. ओके, मैं थोड़ी फिलोसफी में चली गई. कमिंग बैक. Okay, so you have to give feedback in a way that motivates them also, and also gives them some new perspectives if possible. Okay, then coming on to next, the 6th point, that is assessment. अब कोई भी चीज आप इतना सारा टाइम दे रहे हो बच्चों को करने के लिए, फिर आप उनसे कुछ राइट अप तो लोगे, तो उसका एग्जामिनेशन भी करना है और उनको मार्क्स भी देना है उसके बेसिस पे. सो एग्जामिन इफ दे आर एबल टू डेवलप different thinking perspective with respect to the topic. If not, then motivate them to do so. तो ये तो आप फीडबैक सेशन में करोगे ही. यूजुअली फीडबैक आप तब देना जब वो लोग प्रेजेंट कर रहे होंगे. ठीक है, तो जो लर्निंग ऑप्शंस है बहुत सारे हैं. ठीक है, क्या क्या लर्निंग ऑप्शंस है, हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग कुछ डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज करवा सकते हैं. वो सब मैंने डिटेल में नहीं लिखा है. इफ यू वांट आई गिव यू अ साइट वेयर यू कैन रीड एंड रीड अबाउट इट. बहुत सारी चीजें दी हुई है उसमें. तो डिसीजन मेकिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आप दे सकते हो. ठीक है, आप उन लोगों को कोई ऐसा टॉपिक दे सकते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉल साइंस है. ठीक है, और उन लोगों को बोलो कि दिस इज द न्यू लॉ दैट द गवर्नमेंट हैज मेड. If you were the prime minister या if you were to make the law, आपने इसको कैसे बनाते. ठीक है, so this is one type of activity. So what are the activities you can utilize to involve the students in an interdisciplinary perspective? So one is making decision type activities. Second is direct and indirect observation. You can ask them to डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्जर्व द पीपल. फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग उनको बैंक ले जाते हैं, बैंक विजिट के लिए ले जाते हैं सोशल साइंस स्टूडेंट्स को, तो हम लोग उनको ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे फॉर्म भर रहा है, वो सब चीजें. ठीक है, तो यू कैन हैव वैरायटी ऑफ activities in which you can involve them and you can help them learn different topics. Then analysis of resources and problems. आप social problems present कर सकते हो और आप उनको different resources दे सकते हो जिसमें से वो read करके problems के लिए कुछ solution ला सके. You can have study creation and analysis of maps. Social science में you have lot of map related activities, तो उसको भी आप उनको study करने के लिए दे सकते हो. Then you can have exploration of materials. Exploration of materials means reading materials. Books है, reference books है, वो सब explore करने के लिए आप दे सकते हो. तो कोई भी टॉपिक अगर आप उनको ग्रुप में या असाइनमेंट में देते हो, इंडिविजुअल असाइनमेंट के लिए, सो गिव लॉट ऑफ रिसोर्सेज कि ये वाला वेबसाइट यूज कर सकते हो आप ये वाला क्या बोलते हैं ब्लॉग यूज कर सकते हो, या फिर आप ये वाले बुक्स यूज कर सकते हो. ठीक है, अब ये सब देने के लिए आपको बहुत वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा. ठीक है, सो व्हाट आई फील इज व्हेन यू विल एक्चुअली गो इनटू द स्कूल्स ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, आपको ये पता चलेगा कि जो टीचर्स हैं वो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं. ठीक है, वो लोग कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं कि इसकी उसकी गॉसिप करने में, आज मैंने ये बनाया, उसकी सासू माँ ने ये किया, मेरी ननन ने ये किया. ठीक है, they waste lot of time. Okay, so we, rather than wasting our time, as when you are going to school you are a professional, right? So you should utilize your time to explore such things. ठीक है, आपके पास अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है तो भी आपके फोन से तो आप मटेरियल्स देख ही सकते हो कि कौन से वेबसाइट्स अच्छे हैं जो आप बच्चों को दे सकते हो. ठीक है, उसके लिए आपको घर आके एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. यूज दैट टाइम वेयर यू सिट एंड गॉसिप एंड ओके, जो भी मतलब स्पेशली द फीमेल टीचर्स. आई एम नॉट बायस्ड, जेंडर बायस नहीं दिखा रही हूँ, बट दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. ठीक है, ओके,
Then you can have historical inquiry. Inquiry is done by giving them questions. So you can place on them different questions and let them. You can have scientific experimentation. Social science में scientific experimentation बहुत कम होता है, लेकिन कुछ स्कोप है. जैसे कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट की है, क्या बोलते हैं, कहीं से कोई मोहिंजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसे चीजें आर्कियोलॉजिकल सर्विस है, तो उसका अगर कोई क्या बोलते हैं देखना है कि उस एक्सकावेशन में कुछ आयरन रिलेटेड चीजें हैं कि नहीं, कुछ कॉपर रिलेटेड चीजें हैं कि नहीं, या फिर उनका कोई सिक्का मिला है तो वो कौन से मटेरियल से बना है, तो वैसे हम लोग कुछ टेस्ट वगैरह करके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं सोशल साइंस में. ठीक है. Yeah, these are the major learning options that you can give. Raising questions. ठीक है. बच्चों को क्वेश्चंस रेज करना सिखाना हो तो आप लोगों को पहले क्वेश्चंस रेज करना चाहिए पढ़कर. आप पहले सही क्वेश्चंस रेज करो और फिर उनको पढ़ाओ. ठीक है. देन नेक्स्ट इज, कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगी आपको रेजिंग क्वेश्चन से कैसे पढ़ा सकते हैं. Then next is study of original documents. Okay, कुछ original documents available हो किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में भी है कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक्सकावेशन से लिए हुए. वेयर इज इट, आई थिंक इट इज इन द मैनेजमेंट फैकल्टी. सो वो वाले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका स्टडी भी आप प्रमोट कर सकते हो किसी टॉपिक के लिए. देन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग पीपल एंड गवर्नमेंट. यस, आर्कियोलॉजी म्यूजियम है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में वहां पर भी है डॉक्यूमेंट्स. अच्छा है वहां पे. हाँ, तो ऐसी सारी चीजें आप प्रमोट कर सकते हो उनको. फिर डिस्कवरी लर्निंग. देखो, डिस्कवरी लर्निंग का मतलब ये है कि वो लोग खुद ही डिस्कवर करें कि वो टॉपिक क्या बोलना चाहता है. अब वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उनको क्वेश्चंस देकर जब ग्रुप वर्क देते हो तो वो लोग अपने आप सीखते हैं, उसको हम डिस्कवरी लर्निंग बोल सकते हैं. ठीक है. देन यू आस्क देम टू रिफ्लेक्ट. जब आप उन लोगों को ग्रुप वर्क देकर ऐसा बोलते हो कि 10 दिन के बाद आपको प्रेजेंट करना है इस पे, तो एक्चुअली व्हाट दे विल बी डूइंग, दे विल बी रिफ्लेक्टिंग जो भी उन्होंने पढ़ा है. सपोज उन्होंने 20 पेज पढ़े हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो वो लोग देखे रिफ्लेक्ट करेंगे कि ये वाले टॉपिक के लिए ये वाला चीज अच्छा रहेगा प्रेजेंट करने के लिए, ये वाला अच्छा रहेगा. सो दे विल बी रिफ्लेक्टिंग अपॉन व्हाट दे हैव रेड. जो उनको सही लगेगा वही वो लोग प्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो यू हैव टू ऑलवेज हेल्प देम रिफ्लेक्ट. ठीक है. और अगर स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्टिव बनाना है तो टीचर का रिफ्लेक्ट करना भी बहुत जरूरी है. दो पर्सपेक्टिव में रिफ्लेक्ट करना होता है टीचर को. एक तो उनके कंटेंट नॉलेज के बारे में और क्लास में कैसे उनका कंटेंट डिलीवर हुआ या उन्होंने कैसे पढ़ाया. दूसरा, अपनी ओन पर्सनालिटी पर भी करना चाहिए. ठीक है. कि मैं एज अ ह्यूमन क्या दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स को, वो भी, या क्या दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, दैट ऑल्सो इज अ रिफ्लेक्शन. So if you are reflective teachers, you are going to teach in the same manner. ठीक है. आप पढ़ाओगे भी ऐसा ही, जैसा जितना आप रिफ्लेक्ट करोगे. अगर आज मैंने एक क्लास पढ़ाया, आज मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ और मैं ये सोचूं कि कैसा पढ़ाया आज मैंने, स्टूडेंट्स को समझ आया होगा कि नहीं, ये है वो है जो भी है. एक दो लोगों को पूछ लिया, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप लोग मुझे आंसर दे रहे हो, उससे मुझे पता है कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ. ओ, मैं आपसे कनेक्टेड नहीं हूँ. कहाँ गई, लेकिन ये तो नहीं गया. हेलो, hello students, you are able to listen to me, the online Yes, students. we can hear Yes, you. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, ma'am. Huh. You are able to see my screen. Yes, ma'am. वाह वाह, मुझे नहीं दिख रहा है मेरा स्क्रीन, और आप लोग को कैसे दिख रहा है? क्या करूं? चमत्कार मैम, चमत्कार. इसे कहते हैं चमत्कार. मेरे मेरे पीरियड में ही सारे चमत्कार होते हैं. ठीक है.
मेरा तो लैपटॉप भी बंद हो गया, फिर भी मैं हूँ क्या ऑनलाइन? मैं तो अभी इसमें हूँ, आई एम ऑन द फोन। वेयर आर यू ऑल? ये लोग भी नहीं दिख रहे, फोन में भी नहीं दिख रहे, देखो। स्क्रीन दिख रहा है मैम। मैम सारे ये प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है। यस मैम, प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है। वाह, आई एम सो हैप्पी कि आज मुझे नहीं दिख रहा और आप लोग को दिख रहा है। मेरा तो पूरा लैपटॉप ही बंद हो गया, आपको चला प्रेजेंटेशन भी गया दिख रहा यार। है मम्मी अब नहीं दिख रहा है। अभी बंद हो गया मैम, क्या? हाँ। अभी हाँ, नहीं है विजिबल। इसलिए चला गया। 1 मिनट रुको, मेरे को सिर्फ 1 ही मिनट दो। ज्वाइन करने थे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, फिर केस स्टडीज दे सकते हो बच्चों को आप। फिर या दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर। अभी आप लोग को कुछ बोलना है, बोलो। हो गया था ऑलमोस्ट सब कुछ। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें करने से हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव में पढ़ा सकेंगे? दूसरा ये है कि आपको अपने कलीग्स के भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? लेकिन कलीग्स, अभी आप स्कूल गए नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन कलीग्स आपके जो होते हैं ना, वो ऐसे होने चाहिए जो आपको मैम इको आ रहा है। हेलो, आई होप नाउ आई एम Yes, ऑडिबल ma'am. टू। या, Yes, ma'am. यस these are some Yes, of the ma'am. unexplored areas which as Indian teachers we have not explored, ठीक है? फॉरेन कंट्रीज में वो लोग करते हैं। फिर हमारे टीचर्स, पता है तुम्हें क्या वो देते हैं, बहाना देते हैं, इतना बड़ा क्लास है, क्या उसमें इंटरडिसिप्लिनरी और प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाएं, ठीक है? वो तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, सब बकवास है, ठीक है? ठीक है, सोशल साइंस में सपोज 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है? सारे 15 चैप्टर्स आप इससे नहीं पढ़ा सकते। कोई एक टॉपिक तो पढ़ा सकते हो कि नहीं? पढ़ा सकते हो, तो मजा तो आएगा ना, आपको भी आएगा, स्टूडेंट को भी आएगा, ठीक है? किसी एक टॉपिक के बारे में तो आप वेल रेड हो सकते हो कि नहीं? ठीक है, Yes, ma'am. yeah, so this is Yes, what ma'am. this is all what that I wanted to tell you. Now I will share this PPT with you. I'll share both the NCFs with you. NCF आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको पेज नंबर्स बता दूंगी कि क्या आप रीड कर सकते हो। और एक मेरे पास आर्टिकल है जिसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए थे जब मैं आपको रेलेवेंस और उसका बता रही थी ना, रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, वो है मेरे पास, तो दैट ऑल्सो आई शेयर सो दैट यू कैन रीड फ्रॉम इट। उसमें पता नहीं आप कितना समझोगे, लेकिन मैंने उसमें से पॉइंट्स लिए थे, ठीक है? So we end the class here. Now about the assignment, what happened? कुछ students ने बोला था कि उन लोग को problem है ये टेस्ट का डेट रिलेटेड। अभी फाइनली टेस्ट का डेट 6th ही है ना? 6th ही है ना? हाँ मैम। मैम 8 है मैम। हैं? अच्छा नहीं मैम, मैं नहीं। असाइनमेंट सोच रही थी। या मैम टेस्ट 8 है। असाइनमेंट का अब शायद आप लोगों का PRN आ गया है ना? Moodle Yes, पर ma'am. करवा आप लोग Yes, सब ma'am. Moodle में आ जाओगे। Moodle करवा दिया ज्योत्सना मैम। ज्योत्सना मैम आपको बता देंगे कि कैसे Moodle में आपको अपना वो असाइनमेंट सबमिट बता दिया मैम, कल ही हो कल गया। बता दिया। हो गया, ओके, वेरी गुड। आ गए क्या? ओके, फाइन देन, सो we'll stop this meeting. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. मैम मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day.